Welcome everyone. Today in this video we are going to talk about all those disciplines which have contributed to the field of OB. So हमने नेचर ऑफ ओबी में if you remember हमने ये बात की थी कि बहुत से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहां से ओबी नॉलेज डिराइव करता है और उसको यूज करता है टू अंडरस्टैंड दैट हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं. सो इसमें ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो प्रीडोमिनेंटली दे आर नोन टू हैव अ वेरी good impact and very good relation when it comes to the understanding of OB. So one is psychology. Second, we will be talking about social psychology. Then we will talk about sociology. And finally, we will come to anthropology. Now, what is psychology? Psychology, आप लोगों ने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर जो उसका रिएक्शन है या जिस तरह से वो एक्ट करता है वो डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल से. कई बार आज वो इंडिविजुअल जैसे रिएक्ट कर रहा है और जैसे वो बाद में रिएक्ट करेगा, इवन वहां भी यू विल फाइंड दैट देयर इज सम डिफरेंस. सो psychologically there are few factors which determine कि ये इंडिविजुअल कब कैसे बिहेव करेगा. So let's say if there is a manager who makes a comment that, say for example, you people are not working hard, even if ये comment उसने पूरी हो सकता है टीम के लिए बोला हो, बट किस तरह से कोई एम्प्लॉय उसे उस टीम में लेगा इस कमेंट को, ये डिफर कर सकता है. और ये डिफर करेगा क्यों? क्योंकि उन सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है. इनिशियली जब साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ, डेवलप्ड, सो इनिशियल स्टडीज में द फोकस वाज मोर ऑन थिंग्स लाइक फटीग, things like boredom, that why is it that a particular individual gets bored and another individual he doesn't get bored with something. So maybe wherein we try to understand ki okay, interest could be one reason. And later on, when this field of study developed, it started exploring more on the variables like motivation of individual, what is the personality of an individual, how is it that a particular person learns. And if you remember, individual behavior की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए, सो वहां ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. And to that extent, yes, we can very well say that psychology helps us, improve the organizational effectiveness. Similarly, you can talk about emotions, right? So, let's say if there is a situation and I react to that situation, I am not able to control my emotions, then this is because of my psychology. But yes, it is going to have an impact on how, productive or how efficient I'm going to be for the organization as a whole. So ये जो factors हैं, when we try to understand regarding an individual कि उसका जो behavior है वो क्या है, कितना है, you can हमने पहले भी बात की थी कि आप ये बहुत specifically you can measure behavior, and psychology also tries to explain कि क्यों ऐसा बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का. एंड नॉट जस्ट दैट इट ट्राइज टू मेजर एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इवन ट्राइज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने की. सो जब हम बात इंप्रूवमेंट की करते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड how is it that we can change the behavior of an individual. Let's say, I am a leader or I'm a manager and I want my
employees to work in a particular way. I want to change the behavior of those individuals. Now, there can be different ways. ऐसा नहीं है कि सेम चीज को करने के लिए मैं अगर मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं तो मैं चारों पर सेम तरीका अप्लाई करके उनसे वो करवा सकती हूँ. मुझे अलग अलग तरीका भी अपनाना पड़ सकता है. वो क्यों होगा? वो होगा क्योंकि उन चारों की साइकोलॉजी जो है वो अलग अलग होगी. सो इफ आई अंडरस्टैंड and if I'm able to also understand what is the reason, why is it that they are behaving in a particular way, तो फिर it will be easier for me to change their behavior after I understand the psychology of those individuals. So this is where psychology plays a great role in improving organizational effectiveness. Now the next one is social psychology. सोशल साइकोलॉजी में हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर कैसे उसका इम्पैक्ट होता है. लेट्स से इफ देयर इज एन एम्प्लॉय हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, he happens to be a person who is very confident, but if the manager for some reason if he is not able to do something properly, and if the manager tells him आप तो ये काम कर ही नहीं पा रहे हैं, why is it so, क्यों नहीं हो रहा, या इस तरह के कमेंट्स देता है, you will find अब इस केस में उसी एम्प्लॉय के जो अदरवाइज बहुत कॉन्फिडेंट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर उसकी साइकोलॉजी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट. सो इट ऑलवेज हैपन्स. आज जो फैक्टर्स वर्क करते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर साइकोलॉजी, उनमें चेंजेस होते हैं. अब बिहेवियर जब चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेट्स से अभी जो हमने एग्जांपल लिया इसी में, अगर मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय हूं एंड मैनेजर सेज समथिंग लाइक दिस टू मी, I may get demotivated. So maybe earlier when I was trying to work very hard, as far as my performance is concerned, there may happen, it may happen that आप withdraw करना शुरू कर दें. अब इस केस में आपका behavior change हो जाएगा. So similarly like attitude change. So आपका अगर there is a particular employee, it could be a peer also, not always necessary that हम manager से ही हम पर impact पड़ता है. Impact एक peer का भी पड़ सकता है. So again, if there is somebody in your peer group who trusts you, अब just because he has placed trust on me, उससे क्या होगा? Again, it will have some impact on my behavior. So ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि how people influence one another, how individuals influence one another, or how that individual is going to work in a particular group, या जब आप एक सोशल एनवायरनमेंट में जब वो काम करता है तो वो कैसे काम करेगा, when you try and understand that is something wherein we refer to social psychology. So that is why behavior change, attitude change, इस तरीके की जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लर्निंग है, ये ओबी ने डिराइव की है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ने डिराइव की है सोशल साइकोलॉजी से. ओके, नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है? सी, सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स को, राइट. सो व्हेन आई वांट टू स्टडी कि एक ग्रुप कैसे बिहेव करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, और यू कैन से ओवरऑल व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोशल एनवायरनमेंट, ओवरऑल सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप कैसे बिहेव करने वाला है, वो हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में. सो बेसिकली what happens, जब आप बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, अगर मैं उस ग्रुप को समझना चाहती हूँ कि ये ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, सो यू विल फाइंड बहुत सारी चीजें हैं which come into picture, like for example उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि सब ग्रुप्स कैसे काम करेंगे. कम्युनिकेशन किस तरह से होता है ऑर्गेनाइजेशन में,
उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि कैसे ये ग्रुप्स फंक्शन करने वाले हैं, उसमें जो लोग हैं वो कैसे करने वाले हैं, उसमें रिएक्ट। सो पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की जो चीजें हैं, you will find those come into picture whenever you will have different groups which are working in a particular social environment. Power, politics, conflict, all these things come into picture. So if you want to understand that if I'm an individual and how is it that I exert power on the other person, that may be a part of social psychology, but overall how power plays role at a group level and how conflicts take place at a group level, this is something you may understand through sociology. So यहाँ पर आप एक सोशल सिस्टम का जब पार्ट बनते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम समझते हैं सोशियोलॉजी में। इंटरग्रुप बिहेवियर ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे इंटरैक्ट करता है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, डू दे एक्सरसाइज पावर, इट कुड बी ग्रुप्स व्हेन यू कैन से एक ट्रेड यूनियन, दैट इज वन ग्रुप, मैनेजमेंट कुड बी द अदर, हाउ इज इट दैट दे आर इंटरैक्टिंग, पावर कैसे वहां रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिक्स कैसे रोल प्ले कर रहा है। So all of that will be something which we derive knowledge about from sociology. Lastly, it is anthropology. Anthropology में हम क्या करते हैं? See, anthropology is basically something which helps you understand different cultures. We all know and we talk about it many a times कि हर organization का जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस कंट्रीज व्हेन यू सी, लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू कंपेयर a particular organization which is here in India with another organization which operates in, say, United States or maybe Japan, or it may be that because nowadays we have globalization has taken place और बहुत सारी multinational companies हैं which are operating in India itself. So in India only, if you'll try and compare कि एक जापान की अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहां का जो कल्चर है, और अगर आप देखें कि यूएस के ऑर्गेनाइजेशन वहां का जो कल्चर है, या एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, यू विल फाइंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। उन सो बेसिकली जो ये सब कल्चर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, दिस जो डाइवर्सिटी है, क्यों इनका बिलीफ्स, इन कल्चर्स की जो वैल्यूज हैं, इनकी प्रैक्टिसेस, इनका काम करने का तरीका, इनका सोचने का तरीका, ये डिफरेंट है। नाउ एंथ्रोपोलॉजी व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी कि ह्यूमन कल्चर्स क्यों अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है एक कल्चर और दूसरे कल्चर में। So basically, if you'll see, anthropology में we try to understand the societies at a very micro level, at an individual level. Herein we want to understand कि क्या ऐसा है because of which यहाँ लोगों के सोचने का तरीका different है vis-a-vis the other culture। वहां अगर आप देखें कि वहां लोग कैसे सोचते हैं, so वो हम एंथ्रोपोलॉजी में समझते हैं कि एटीट्यूड्स क्यों डिफरेंट हैं, लोगों के बिहेवियर क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, जब आपके बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं, तो ओवरऑल आप जो बिहेवियर है आपका ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। एंड ये भी समझना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। ऑर्गेनाइजेशंस दे मे वांट टू लर्न कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन उसका कल्चर इतना ऐसा है कि एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी देयर, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोबेबली इफ इट इज नॉट सो, तो क्यों नहीं है, एंड दे मे जस्ट वांट टू अडैप्ट टू दैट थिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज लर्न। सो इन नटशेल, all these disciplines, psychology, social psychology,
sociology and anthropology. These help us understand the organizational behavior well. जब आपको समझ में आएगा कि लोगों की साइकोलॉजी कैसे है, एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, विच इज साइकोलॉजी, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर क्या इंपैक्ट होता है, विच इज सोशल साइकोलॉजी, एक इंडिविजुअल जब एक पार्ट होता है सोशल सिस्टम का, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहकर जब वो काम करता है तो वो कैसे करता है, वो ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, दैट इज सोशियोलॉजी। और अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर में हैं, उसमें रहते हैं और किसी और कल्चर में रहते हैं, तो आप में क्यों डिफरेंसेस हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, क्या आपकी वैल्यूज और बिलीफ्स हैं, that we will understand through anthropology. So all of this knowledge, it is very much important when you are the one who wants to impact organizations effectiveness, who wants to improve this organizational behavior. So it can always be done when you know about this interdisciplinary nature of OB and you incorporate whatever these disciplines have given to us. That is all for today's class. Thank you.